about it. ठीक है, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं, कभी ख्याल आया कि टाइम आपने रियलाइज किया व्हाट आर थॉट्स केम इनटू योर माइंड, व्हाट आर यू वर थिंकिंग, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, इट शुड बी इजी एंड सिंपल टू एक्सप्रेस. जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना डिफिकल्टी होगा प्रोजेक्ट. ठीक है, टाइम लिमिट 2 to 3 minutes. I am putting you on timer. Okay, take your mics here. 2 मिनट है आपके पास. उसके बाद फिर आए Start without mic. Was it not working? it is working. Keep it close. I'm better slow. I can speak loud. Condition. Now it's working condition, so you can use it. But it will be stopped. Yes. Just keep it in your hand. So good afternoon, everyone. My name is Prashant Mishra. I am a student of BCA AG. Okay, and I will tell you about the day I realized I could start my own business. So here I am, like the day when I started thinking about my business skills. Like when I start realizing that yes, I am having that convincing power. Like in a business site, we say we are experiencing. There are many managers who have the convincing power to make their employee more efficient. Like those things are there. So I feel that the day when I feel where I can convince or I can manage things like that, the complex things, what I'm talking about, the complications of things. Like there are many things in business. There are many things, like there are managing work, there are accounting works, there are everything which is very complicated in a business. So what are their you use, like what are the problems, what are the factors to become a good businessman is very important. So I feel that I can be a good businessman because I have a convincing power. I can convince anyone with my good logical points, good logical statements also. Okay, so in that I feel that I can make a good business by investing something in some manner. Like if I have an example, like if I will start IT sector, like IT business, okay, I will make a computers, I will make a software developing things like software systems, okay, which will include those problems which are coming in this generation will solve. Okay, like that things. I need many employees, I need many IT sector employees, I need many computer science employers. I will make it happen. Like there are many process between this. So if I am thinking about I will become a businessman, so I need to think about the boundaries of a businessman. I need to think about the need of a businessman. I need to think about analyze how they are analyzing. Okay, so I think I can analyze because I take things like in a detailed way, in a like a purify way. Like I filter the things what are very important for me, what are required for my employees also. These are the things where I think that these are the beneficial things. What is there in myself
is very important, and I think I can be a good businessman also. I can be a good representative also. So thank you. Yes, be quiet. Touch to me. What's your name? Prashant Kumar. SHRA. SHRA. 70. 170. 21. All right. Yes, next candidate. You can sit. Good afternoon, class. Here I am. Let me just put the timer on. Yes, be quiet. बहुत हंसी आ रही है तो इधर आके देख लो, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कितना हंसी आता है. Here I am for telling you a story of my funniest event of my life till now. This is the story of my when I was studying in class 6 in DAV Public School, Chhapra. I was the class monitor of the class, and everything is going right. But I suddenly someone came and informed me that the third class will be vacant. No teacher will be available at that time, and my responsibility is to keep all students silent. Everybody was certain. No one is listening my voice. I was very scared, and my class teacher already had told me, if you will not able to complete your duty, then you will be punished. And I have a fear. What will I do? I take my register and I tell that I am going to tell that everybody was shouting in the class and everybody will punishment. I will giving my name also. I will be beat with you guys also. Everybody was just staring and they are requesting me to not to go to sir, principal sir, but I was in bad mood and I said that I will go and I will not listen. I will not told anyone, and I just take the register and go outside of the classroom and go to toilet. Nobody was knowing that I am in the toilet. I was in toilet for 3 minutes. Everybody was quiet. I came and I came back and I sit on my place. Nobody is sitting. Everybody is quiet. I was very happy that nobody has known that I have gone to toilet and I have waited there. This is the funniest day of my life. And when the teachers know that I do this type of activity, then teachers awarded me and he give his best pen to me. And that's it. My funniest day. Then Kumar Sharma. Yes. Your turn. Good afternoon, class. My name is Nikesh Darshan, and I am here to express my feelings on it is possible to say truth all the time. Yes, it is true that all the time we should say the truth. What is the reality in our life, and we should say truth all the time, because if we don't express our feeling with anyone with truth and with politeness, so we can be
we can be face any trouble in future. So we should try to say the reality, the real thing. For example, if we got absent by any reason in my class, so we should tell our teacher the main reason, not the fake one that we but that we make so the motive of this the motive of this topic, the truth is beneficial to us in our life, in every aspect of life. We follow the truth, and the truth and also we believe in truth, not in the fake promises, to make any fake promises to anyone, with my friends or family, or with our parents. So that's all. Thank you. Yes, anybody else who would like to come? Now you have seen how it is done. So any new students who want to come? Try कर सकते हैं आप लोग. I can give you real topics. What? 1 minute. First of all of you, all three of you, put some practice in your pronunciation. ठीक है? Because होता है, because नहीं होता. ठीक है? तो आपके जो pronunciation है कुछ words के, वो बहुत खराब हो रखे हैं शुरुआत से. तो अब उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जब जानते हो कि सही नहीं है तो सही कर लो. ठीक है? क्योंकि उससे मार्क्स कटते हैं कंपटीशन में. वेदर यू पार्टिसिपेट इन स्पीच, डिबेट और एक्सटेम्पोर, जैम सेशन, सब में, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स देखी जाती है ना, उसमें उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन भी आता है. ठीक है? तो प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान रखना होगा. एक्सेंट एक दिन में नहीं सुधरेगा, इसलिए मुझे पता है कि मैं उसके लिए अभी नहीं बोलूंगी आपको. जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, we will work together on your accents, but right now work on your pronunciation. जो भी words आप use कर रहे हैं, take care in your mind कि आप pronounce सही से करें. ठीक है? Always remember, अभी तो आप लोगों ने जो बोला वो बहुत ही simple तरीके से अपने बस ideas को present किया है, और यही सही तरीका है बोलने का. Last class ही बताया था, जितना आप close to reality रहेंगे, उतना ज्यादा आप ज्यादा better तरीके से prepare कर सकते हैं. ठीक है? टॉपिक्स जो भी आपको मिले, जितना आप रियल रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जो टॉपिक मिला था, द डे आई रियलाइज्ड दैट आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस. ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच में कभी सोचा है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ओके, अराउंड 20 स्टूडेंट. ठीक है, राउंड फिगर हम ले रहे हैं. तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए, हाँ ठीक है, हमारे अंडर कब काम करेगा? जब तुम बिजनेस खड़ा करोगे अपना. ठीक है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब तुम्हें बिजनेस भी नहीं करना है लेकिन काम भी नहीं करना है. यस, ऑल दो स्टूडेंट्स. अब मान लीजिए कि किसी ऐसे बच्चे को ये टॉपिक मिल रहा है जिसने कभी सोचा ही नहीं कि वो बिजनेस कभी खड़ा करेगा अपना खुद का, तो वो क्या बोलेगा? वो झूठ बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम रहेगा तब तो आप सोचोगे वो चीज के बारे में.
क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी तो चीज नहीं है, शर्ट तो नहीं खरीदना है, बिजनेस खड़ा करना है, बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए सोचना पड़ता है, स्टैटिस्टिक लगाना पड़ता है, मार्केट स्टडीज करना पड़ता है, बहुत कुछ करना जरूरी है उसके लिए, राइट। तो उन चीजों के लिए अगर आपको लगता है ऐसा कि आपने कभी नहीं सोचा, गो फॉर द जेन्युइन थिंग। एक्सटेम्पोर और जैम सेशन में झूठ नहीं चलता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। कहते हैं ना चोरी हर किसी के बस की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसमें भी दिमाग लगता है। तो बेटर येट गो फॉर द ट्रुथ। जिसने नहीं सोचा है वो यहाँ आके यही कहेगा कि आज तक तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा करूँ। ये तो कर सकते हो ना कि अगर आपको एक बिजनेस मिल गया, मान लो आपने इनहेरिट कर लिया किसी का बिजनेस, तो आप क्या करोगे इतना तो पता है ना। आपने देखा होगा कुछ, मान लीजिए आप एक शॉप इनहेरिट कर रहे हैं छोटा सा, वो भी तो बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है। तो उस शॉप में आपने जो, मान लीजिए आप घर के बगल में जो शॉप से वहां जाते हैं, वहां कोई चीज आपको गड़बड़ लगती है, तो आप दुकानदार को बोल देते हो ना कि भैया ऐसा कर लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वही चीज आपको यहाँ बोल देनी है कि इफ आई वांट टू स्टार्ट अ माय ओन बिजनेस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सप्लायर्स से कैसे डील करोगे, किस तरह की सप्लाईज मंगाओगे, किस जगह पे आपको कौन सी सप्लाईज मंगानी है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है ना। क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा बैठा नहीं है जो कभी दुकान पे कुछ खरीदने नहीं गया। कोई है ऐसा बच्चा जो कभी दुकान पे कुछ खरीदने नहीं गया? यस, कौन है? कौन है ऐसे नवाबजादे? जरा शक्ल दिखा दे अपनी। पेन खरीदने, कॉपी खरीदने, कुछ तो खरीदने जाते होगे ना। और लड़के तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलो, धनिया मिर्ची तुम ही लेके आते हो घर के लिए, है कि नहीं? तो वो सारी टैक्टिक्स यूज करनी होती है, ठीक है। तुम्हें देखो, तुम्हें प्रॉब्लम ये है ना तुम्हारी कि तुम जो करते हो और तुम्हें जो सीखना है उसके बीच का तुम ब्रिज नहीं बना पाते हो, ठीक है। बहुत सारे बीसीए के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो मार्केटिंग कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको इस चीज के, आपके प्रैक्टिकल्स को थ्योरीज के बीच का ब्रिज नहीं मिलता, राइट। आपको पता सब कुछ है, आपको एक छोटी सी दुकान बगल वाला चला रहा है, आपको हर रोज उसकी गलती दिखेगी कि वो क्या गलत कर रहा है। लेकिन वही चीज अगर आपको खुद की दुकान दे दें तो आप भले वो गलती नहीं करोगे, लेकिन दूसरी कोई गलती जरूर करोगे। तो वो चीज क्यों हो जाती है? आप क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, आप प्राइड बहुत ज्यादा रख लेते हैं। जस्ट बिकॉज आप दुकान के मालिक है डज नॉट मीन कि आप पूरी दुनिया खरीद लिए। तो प्राइड मत रखिए। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो ले लो ना, ट्राई करके देखो, क्या हर्ज है? तुम्हारा बिजनेस है, अच्छा हो गया तो तुम्हारा मुनाफा होगा। थोड़ी तुम उसको देने जाओगे जिसने राय दी है, देने जाओगे उसको? नहीं ना। 10% कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, टॉपिक हिला दोगे। सो बेस्ड ऑन दैट आपको बस थोड़ा सा जो है रियलिटी से, मतलब ऐसा एक बैलेंस जिसको कहते हैं ना, झूठ और सच के बीच का एक बैलेंस होता है जिसे हम फिक्शन कहते हैं। उस फिक्शन का क्रिएशन करो यहाँ पर। जब कोई चीज, हाँ एसी बंद नहीं है, एसी ऑन है तो ऑन कर दो दूसरा। नहीं, पंखा कोई ऑन नहीं करेगा। यस यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपको जब ऐसा कोई टॉपिक मिले जो आपने सोचा नहीं है या आपके साथ कभी वैसा हुआ नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं किया और ऐसा कोई टॉपिक मिल गया कि हाँ मुझे प्रैंक करना है किसी के साथ, ठीक है, तो क्या करोगे? अब तुम सीधे साधे बच्चे हो, तुम प्रैंक कर नहीं सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। सबसे पहला, तुम्हारे साथ कोई प्रैंक हुआ होगा वो तुम बता सकते हो कि हाँ मैंने किया था। कोई पूछने थोड़ी जा रहा है कि तुम्हारे साथ हुआ था कि तुमने किया है। कोई वेरीफाई थोड़ी करने जाएगा पास्ट में, किसी ने टाइम मशीन अभी तक तो बनाई नहीं है। तो आप वहां पर वो चीज कर सकते हैं। या फिर आपने किसी के साथ ऐसा होता देखा है कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो अपने तरफ से स्टोरी बता दो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था या मैंने ऐसा किसी के साथ किया था। अंडरस्टूड? सेकेंड, ये क्या होती है? ये रियलिटी और झूठ का थोड़ा सा एक मिक्सचर होता है, ठीक है। आपने देखा है वो चीज होते हुए किसी और के साथ, भले आप उस स्टोरी के कोई कैरेक्टर नहीं रहे, लेकिन आप सुना तो सकते हैं ना उस कैरेक्टर का स्टोरी अपने तरफ से, राइट। सो दिस इज द बैलेंस बिटवीन रियलिटी एंड लाई, ठीक है। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हैं? यू कैन क्रिएट अ फिक्शनल थिंग विच यू विल फील लाइक कि आप ऐसा करेंगे किसी के साथ। मान लीजिए आपने कभी तो सोचा होगा ना कि अगर एक पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, जैसे क्लास में कोई एक बंदा होता होगा जो बहुत इरिटेट करता होगा आपको, ठीक है।
आप लोग के लिए स्पेशली वो स्टूडेंट जो बार बार होमवर्क मांगता था टीचर से, मैम आपने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, चेक कर लीजिए। अब जब वो मांगता होगा तो आपके दिमाग में कोई तो आइडिया आता होगा ना। हाँ, नहीं मारने धारने वाला नहीं, कुछ और। ठीक है, उसको मारेंगे नहीं हम, उसको थोड़ा समझाएंगे बस, थोड़ा बहुत छोटा मोटा धमका कर। हाँ, बेस्ड ऑन दैट जो आपने सोचा उसी को रियलिटी बना दो कि हाँ हमने ऐसा किया, राइट। तो वो क्या होता है, वो तुम्हारा फिक्शनल ट्रूथ है कि तुमने ऐसा किया तो, लेकिन सपने में। ठीक है, अब वो वेरीफाई कोई नहीं करने जाता, लेकिन कंटेंट तो तुम्हारा रियल हो जाता है ना कहीं ना कहीं। अब जहां रियलिटी और लाई का बैलेंस मिल गया, वहां तुम्हें कंटेंट मिल गया बोलने के लिए। ठीक है, nobody is going to verify that whether you are saying correct or not. The only thing they are seeing is how exactly are you going to present it and what exactly are you presenting it. दोनों चीजें देखकर ही आपके परफॉर्मेंस जज की जाती है। कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, कैसे कहा, ठीक है, और क्या आइडियाज प्रेजेंट किए, बस इतना ही उनको जानने की शौक है। ठीक है, तो एक्सटेम्पोर और जैम सेशन में या कोई भी इस तरह का कंपटीशन अगर होता है, रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन रियलिटी एंड लाई, और फिक्शन और लाई। तो वो सारी चीजें आपको बैलेंस क्रिएट कर देना है। अब क्या होगा, क्या होगा? थैंक यू मैम, मैं आपका ये लेसन नहीं दूंगा। All right, so anybody else who would like to participate, या हम कोई और एक्टिविटी करें? Pronunciation पे ध्यान देना है। दूसरा, कहीं कहीं आप अटक जा रहे हैं कुछ चीज बोलने में, इसी के लिए मैंने आपको 2 मिनट दिया था। ठीक है, टॉपिक लेने के बाद बोलो। कभी-कभी ऐसा होता है कि टॉपिक या कुछ वर्ड माइंड में रखते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है दिस इज बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेज। इसे हम ब्लॉकेज कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आइडियाज आपके पास हैं, सेंटेंसेस में माइंड में आ जाते हैं बट उसको उसमें से कुछ वर्ड मूव हो जाते हैं। आई नो दैट, इसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वहां बैठ के वो 5 लाइनें सोच लेते हैं, पर यहाँ आते आते 2 लाइन खत्म हो जाती हैं, तीसरा आपकी शक्लें देख के खत्म हो जाती हैं, और चौथा आप हंस देते हैं, बस खत्म। हाँ, तो वो सारी चीजें उसको हम ब्लॉकेज कहते हैं, और वो रेगुलर कॉमनली सबके साथ ऐसा होता है स्टार्टिंग में। लेकिन दिस विल नॉट हैपन व्हेन यू वंस यू गेट यूज्ड टू कमिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, क्योंकि ये एक स्मॉल लेवल का स्टेज फियर कहलाता है। ठीक है, आपको आते टाइम यहाँ पर क्या है, आपका माइंड जो है सबसे पहले आपको यही कर रहा है, क्योंकि आप नर्वस हैं, एंग्शियस हैं, तो वो आप जो है कांस्टेंट मैसेज अपने माइंड को भेज रहे हैं कि जल्दी खत्म करके जाना है सीट पर। तो उसका मेन प्रायोरिटी बन जाता है कि इसको भेजना है सीट पर किसी भी तरह। तो ये जो सेकेंडरी रीजन हो जाता है कि बोलना क्या है, ये डाटा आपका सेकेंडरी हो जाता है, तो माइंड उस पर फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, सो वंस यू गेट यूज्ड टू कमिंग ऑन द स्टेज, वो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ बस, क्योंकि देखो ये सारी जो चीजें हैं ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, और कम्युनिकेशन जो है कोई थ्योरी नहीं है जिसे आप रट सकते हो, याद कर सकते हो। कम्युनिकेशन एक आर्ट है। ठीक है, जिस तरह टीवी पे देख के भरतनाट्यम नहीं सीखा जा सकता है, सेम वे किसी को देखकर आप कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस ही करना होगा खुद से, खुद की गलतियां समझनी होगी, खुद की गलतियों का सोल्यूशन निकालना होगा, तभी जाके आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर कम से कम ऐसे 50 बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि हम कभी अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, मैं भले आपकी एज में ये क्वेश्चन खुद से कुछ नहीं पूछा था मैंने, लेकिन बहुत कम एज पे मैंने खुद से ये क्वेश्चन पूछ लिया, विल आई बी एवर बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस दिन मैंने खुद से पूछा, उस दिन से मैंने काम पे लग गई कि अब नहीं आएगा तो आना सीखना है। And there was a lot of help from my surrounding. तो जब आपको हेल्प मिल रही है सराउंडिंग से, तो एक दूसरे की हेल्प करिए। ठीक है, आई नो देयर आर पीपल हु आर बुलिंग यू कि कुछ गलत बोल दोगे तो वो हंसेंगे। मुझे ये बताइए, जो हंस रहा है वो तुमसे ज्यादा जानता है क्या? नहीं ना, तो उसके साथ मिलके हंसो, या अगर वो ज्यादा जानता है तो उससे सीख लो, फिर तुम भी उस पे हंसना। Try to find a way to learn, not to leave learning.
ठीक है, अब मान लो खाने के टाइम पे कोई टोक दिया तुमको कि बाहर का मत खाया करो, तो तुम बाहर का खाना छोड़ दिए? यस मैम, कौन है बच्चे? कोई टोक दिया था इसलिए छोड़ दिए? कौन टोका था बच्चे? हाँ, डॉक्टर। उसको टोकना नहीं कहते हैं, हे प्रभु, उसको सजेस्ट करना कहते हैं, उसको एडवाइस करना कहते हैं। किसी ने ऐसा कहा कि मत खाओ बीमार पड़ जाओगे या मोटे हो रहे हो? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, किसी और ने तब छोड़ दिए थे। किसी और के कहने पर कि डॉक्टर के कहने पर? कभी बोल रहे डॉक्टर के कहने पे छोड़ दिया है? तुम पहले डिसाइड कर लो किसके कहने पे छोड़े थे तुम। नहीं बता सकते तब मत ही बोलो। यस, सो बेस्ड ऑन दैट, जो चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको तुम नहीं ना छोड़ते हो कभी भी, तो ये क्यों छोड़ देते हो फिर, है ना? कोई हंस दिया तो हम फिर बोलना ही छोड़ देंगे। मैंने देखा है अभी, इनफैक्ट तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स 1-2 दिन बोलना शुरू किए इंग्लिश, 2-3 लड़का हंस दिया, उसके बाद बोलना ही छोड़ दिए। लाइक दे लिटरली पेड द फाइन बट दे नेवर स्पोक इन इंग्लिश, कि हम पैसा दे देंगे लेकिन इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि हंस दिया कोई। ये कोई बात होती है? अब तुम्हें कोई टी शर्ट पसंद आ रहा है, कोई हंस देगा तो तुम नहीं लोगे? नहीं लोगे? नहीं लोगे तो बच्चे तुम्हारा विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं बता दूं आपका विल पावर जो है बहुत कमजोर है। अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं कि कोई टोक दिया तो हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है? आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिना रीडिंग के नहीं आएगी। आप लोग को रीडिंग की बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है? आप बैठ के बोल के पढ़ते नहीं है किसी भी चीज को। जो भी चीज आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, जो भी क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि किताब ले लेके तुम पढ़ो। जो पढ़ रहे हो क्लास में उसी को घर के जाके रिवाइज करो, बोल बोल के रिवाइज करो। उससे क्या होगा, कोई भी देखो, तुम्हारा आईटी का भी जो चीजें लिखवाई जाती है उसमें डेफिनेशन होता है कि नहीं, टाइप्स होता है कि नहीं, मतलब इंग्लिश है तो उसको जोर जोर से पढ़ो। उससे क्या होता है, फ्लुएंसी आती है फ्लो में, ठीक है? कि आप जो है रुक रुक के, जो अटक अटक के आपको बोलने की आदत है ना, वो आपकी रीडिंग से ही सही होगी। वंस यू गेट द रीडिंग क्लियर, ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, आप खुद से हर दिन एक न्यूज देखकर उसके ऊपर 4 लाइनें लिखना शुरू करो, ठीक है? न्यूज तो आप लोग देखते ही होंगे, नहीं देखते हैं? जो नहीं भी देखते उनको मैं बता दूं, आप लोग जो रील्स देखते हैं ना उसमें भी बहुत सारी चीज न्यूज वाली बताते हैं, तो उसको भी प्लीज रिव्यूज कंसीडर कर लो। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज न्यूज वाली बताते हैं उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, तो ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए। लेकिन आपकी आदत है कि ज्ञान जहां से मिलता है वो भूल जाते हैं, लेकिन वो जो नाच रहा था वो याद रहता है, ठीक है? तो वो चीज नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट है उसको रखिए, जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको फिल्टर करना है, ठीक है? तुम लोग का फिल्टर थोड़ा खराब हो गया, उसको सही करना है। तो उसमें जो न्यूज होता है उसको जो या फिर आप InShorts डाउनलोड कर लो। InShorts इज वन ऑफ द एप्स व्हिच प्रोवाइड द न्यूज फॉर 60 वर्ड्स, मतलब वो 60 वर्ड में आपको एक हेडलाइन की न्यूज बताएगा कि कौन सी न्यूज लेटेस्ट चल रही है या कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, वो सारी चीजें यस इंग्लिश में बताता है। बच्चे न्यूज़पेपर का ऐप तो तुम कर लो, लेकिन पढ़ोगे कितने लोग? हाँ हाँ, नोटिफिकेशन ही पढ़ते हो, उसमें से भी आधा नोटिफिकेशन पढ़ते हो, ये काम का है, ये काम का नहीं, ये काम का है, ये काम का नहीं, ऐसे जाता है तुम्हारा नोटिफिकेशन। तो बेटर येट कि जहां से आपको बेटर न्यूज मिल रहा है, जहां पर मन लग रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि रील्स देखना बिल्कुल ही खराब है, लेकिन सही चीज का रील्स देखो। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो भी अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट करते टाइम आजकल डालने लगे हैं रील्स, वो रील्स देखिए, ठीक है? क्योंकि आपका IT सेक्टर एक्सपेरिमेंट से ही भरा हुआ है, ठीक है? कोडिंग सिखाते हैं बहुत सारे लोग, उनका भी शॉर्ट्स आता है, वो शॉर्ट्स देखो, है ना? तो दिक्कत यही है कि यूजफुल चीजें नहीं देखते हो तुम लोग, और देखते हो तो भूल जाते हो। डोरेमोन देखता है। और कुछ
टॉम एंड जेरी, थैनोस। अच्छा, टॉम एंड जेरी इंग्लिश में देखिए किसी ने? समझ में नहीं आया। उसमें भी डायलॉग्स होते हैं, उसमें भी इंग्लिश बोलता है, देखा है कभी किसी ने? विद सबटाइटल देखा है ना? उसमें सीखते क्यों नहीं हो फिर? ये हाँ, बस वो मजा के लिए नहीं होता है, कुछ चीजें सीखने के लिए भी करते हैं। यस, सी तुम लोग जितना काम करते हो ना, सब चीजें सीख सकते हो, बस फर्क यही है तुम सीखना चाहते नहीं हो उससे। ठीक है, नहीं, एंजॉयमेंट के साथ भी लर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो एंजॉयमेंट के साथ लर्निंग करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है, तो मैं बता दूं, कोई आपको ऐसा घुट्टी नहीं पिला सकता है कि आप सीख जाएंगे कोई चीज। ठीक है, हर चीज सीखने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको कोडिंग भी कोई सर आके नहीं सिखा रहे हैं, आप खुद से समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तभी सीखोगे। समझ में आया? सो व्हेन यू गो विद दैट, आपका ये हो गया, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो गया, फ्लुएंसी प्रॉब्लम हो गया। और एक चीज है कि जब भी आप आइडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके में स्पेसिफिकली क्या नाम है, प्रशांत ना? हाँ, प्रशांत, आपके में एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई भी आइडिया प्रेजेंट करते हो, ठीक है, एटलीस्ट गिव वन स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारा एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन वो सारा एग्जाम्पल बहुत ही वेग था, कोई एग्जैक्ट डिटेल आपने नहीं दी कि मैं अपने कंपनी में ये चीज पक्का रखूंगा, ठीक है, या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो ये चीज मैं पक्का नहीं करूंगा। समथिंग और दी अदर, कम से कम एक ऐसी डिटेल रखिए जो पूरी की पूरी स्पेसिफिक हो। ठीक है, एंड अगन, यस बच्चे, आपका जो वो तरीका है बोलने का, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है। तो बच्चे वो तो होगा ही ना, ऑब्वियसली जब आप नहीं करोगे कोई काम तो डर तो लगेगा उसको करते टाइम। ठीक है, इट इज यूजुअल, इट विल कम टू यू व्हेन यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट। ठीक है, 2-3 बार 4 बार करोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो उसमें वही एजिटेशन जो है, ऑल्सो आपका जो पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर, निकेश, यस, आपका बॉडी पोस्चर बच्चे कभी भी क्लोज नहीं होना चाहिए, हाथ इस तरह या ऐसे बांधना नहीं है, बॉडी पोस्चर शुड बी ओपन। ठीक है, आपके पांच जो हैं हमेशा ऑडियंस को तरफ रहना चाहिए। मुट्ठी बंद करना या इस तरह रख लेना या इस तरह रख लेना, ये रूड कहलाता है व्हेन यू आर इन द ऑन द स्टेज। ठीक है, इन द पोजीशन ऑफ अ स्पीकर यू हैव टू बी ओपन। ओपन मतलब क्या, आपका बॉडी लैंग्वेज इनवाइटिंग होना चाहिए, ये सेफ फील कराना चाहिए अपनी ऑडियंस को। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह अगर रखोगे या इस तरह पैक करने से क्या होता है, ये डिफेंसिव पोज कहलाते हैं। इसका मतलब कि आप नहीं जाना चाहते हैं इनके सामने। ठीक है, ये पोज देखकर ही समझ जाती है ऑडियंस कि ये नहीं बोल पाएगा, या इसको हेजिटेशन हो रहा है, नर्वस है, एंजाइटी है, ये सारी प्रॉब्लम। एंड प्लस इससे होता क्या, देखो ये पूरा खेल जो है ना मेंटालिटी का है। ठीक है, माइंडसेट अगर पूरा तुम्हारा सही नहीं है तो ये पूरा का पूरा सर्कल चलता जाता है। तुम यहाँ पर क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज लेके अगर खड़े हो, ऑडियंस को लगेगा कि ये नहीं बोल रहा है, उसमें से आधी ऑडियंस सुनना बंद कर देगी, बाकी की आधी आपको बस मतलब फेल होने के लिए देख रही है, ये कितनी गलतियां करेगा। और ये चीज आपका माइंड जो है सेंस कर लेता है, एक सिक्स सेंस होती है ना आप में, कि आप सेंस कर लेते हैं कोई चीज जब गड़बड़ होने वाली है, वो सिक्स सेंस वहां पर काम करने लगता है तुरंत कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। नाउ योर बॉडी इज टोटल अंडर डिफेंसिव पोजिशन बिकॉज योर माइंड थिंक्स दैट यू आर अंडर अटैक। आप इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि आपका जो न्यूरोसेल्स है वो ये सोचता है कि आप पे अटैक किया जा रहा है, और आप पूरे के पूरे डिफेंसिव पोज पे चले जाते हैं। उसकी वजह से आप क्लोज अप होने लगते हैं, आपका वॉइस कमजोर हो जाएगा, आपको पसीना आने लगेगा, आपको, हाँ वो सब चीज नॉर्मल है। ठीक है, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, फेंट होना, ठीक है, आंखों के सामने धुंधलापन होना, ये सारी कॉमन फैक्टर्स हैं, और सबका रीजन एक ही है कि आपका जो नर्वसनेस रहता है। ठीक है, वो नर्वसनेस आपको, अच्छा, सम पीपल आल्सो हैव पैनिक अटैक्स ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंसेस। वो पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस लेवल ऑफ इश्यूज हैं। इसका मतलब कि आप बिल्कुल ही क्लोज्ड अप रहना चाहते हो। ठीक है,
दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप इंट्रोवर्ट हो, बिल्कुल ही शेयर नहीं करना पसंद करते हो, दूसरा या फिर आपको शेयर करने की आदत नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से एक स्पीकर को यहाँ पर स्टेज पे करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड से तो खुल के बोल देंगे लेकिन बाकियों के सामने नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, वो चीज भी आपका एक पर्सनालिटी में ढल जाता है जो आपको गुड स्पीकर बनने से रोकता है। बिकॉज अ गुड स्पीकर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑडियंस। ठीक है, उसका स्पीकिंग कैपेबिलिटी कभी भी ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड कर सकता है जो वो बोल रहा है, कंटेंट डिपेंड कर सकता है, लेकिन स्पीकिंग एबिलिटी उसकी अपनी एक खुद की स्टाइल होती है। तो व्हेन यू ग्रो अप, ठीक है, आप जब ग्रो करेंगे अपना कम्युनिकेशन स्किल, आपका खुद का एक यूनिक एबिलिटी होगा जो एक तरीका होता है, जैसे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है ना। ठीक है, कुछ टीचर्स आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, कुछ टीचर्स आपको स्पेसिफिक चीजें बताते हैं जो ट्रिगर करती हैं आपके माइंड में कि आपको याद रहे उन चीजों के साथ, एग्जांपल के साथ। तो वो टेक्निक जो होता है वो अपने आप डेवलप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर सोच के आते हैं कि हाँ हम ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं, दीज थिंग्स आर थ्रू इंटरेक्शन। जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हमारा होता है तब हमें खुद समझ में आ जाता है कि बच्चों को किस तरीके से उनका बात समझ में आ रहा है। तो ये यूनिक स्टाइल अपना डेवलप हम लोग थ्रू आउट द ईयर कर लेते हैं कि इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से समझाने से वो समझ जा रहे हैं, या इस तरीके से करने से वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड नथिंग एल्स। आपको लगता है कि आप फर्स्ट बैच ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं, हर साल हर बैच के साथ हर टीचर एक्सपेरिमेंट करता है। They do certain kind of things and if that doesn't work, वो फिर से अलग स्टाइल ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो being a speaker you need to develop, keep on developing your style। ठीक है, आपका एक अपना अनोखा स्टाइल होना चाहिए बात रखने का, और वो आपका स्पीकिंग स्टाइल मेंटेन करता है। वो बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन अभी के लिए सब कोई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप यहाँ आना नहीं चाहते। आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? नर्वसनेस, हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस का बहुत कमी है, वर्ड का बहुत कमी है। वर्ड की कमी के लिए तो बच्चे आपको रीड करना होगा, लिसन करना होगा। देखो, आप लोग को लगता है ना कि इंग्लिश आप बहुत जल्दी सीख जाए, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि आप इंग्लिश को हिंदी की तरह नहीं सीखते हो। आपको हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीखी आपने? सुन के। ठीक है, बचपन में मम्मी पापा जो बोलते थे आप भी रिपीट करते थे ना उनके पीछे पीछे, तभी सीखे हो। वो चीज आप इंग्लिश के साथ करने नहीं चाहते हो। ठीक है, तो वर्ड जैसा सुनते हो वैसा रिपीट करो, तभी तो प्रोनाउंसिएशन सही होगा, राइट? आप जो चीज सुन रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते। जैसे बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो आपने पढ़ी होंगी अभी तक, लेकिन उनमें जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, क्या कभी यूज किया आपने अपने लाइफ में? मीनिंग बताया तो जाता है लेकिन भूल जाते हो, है कि नहीं? भूल जाते हो कि नहीं? क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि आप यूज ही नहीं करते हो ना। ठीक है, अब मान लो कोई मशीन आपको दी गई है, ठीक है, 50 साल पुरानी मशीन है, आपको याद रहेगा उसको कैसे यूज करना? अगर आपने यूज नहीं किया तो नहीं याद रहेगा ना। एवरीथिंग हैज टू बी पुट टू यूज। जब तक यूज नहीं करोगे वो दिमाग से जाता चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब थ्योरी पढ़ते हो या कोई भी चीज याद करनी होती है, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप भूल जाते हैं याद करने के बाद, आधा आंसर भूल जाता है, कोई कोई बच्चा मेन पॉइंट्स ही भूल जाता है, बस उसको एग्जाम्पल याद रह जाता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? डर की वजह से नहीं, ध्यान से आप पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। फिर क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इरेजेबल मेमोरी है, वहां से जाएगा और फिर इरेज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तब याद रहेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए आपको पुश करना पड़ता है उस चीज को। ठीक है, एक बार रीड करो, 10 बार रीड करो, 50 बार रीड करो, तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लेकिन 50 बार तो तुम पढ़ने से रहे,
लेकिन 50 बार सेम गाना जरूर सुनोगे रिपीट पे लगाकर, है ना? कभी ये सोचा है कि क्यों एग्जाम में लिखते टाइम गाना याद आता है? क्योंकि वो गाना 25 बार रिपीटेशन पे सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। जो पढ़ रहे थे उसे एक ही बार पढ़ा, 2 ही बार पढ़ा, ठीक है, तो वो जाता नहीं है, नहीं याद आएगा। कैसे याद आएगा बच्चे? उसको तुमने सबकॉन्शियस में डाला ही नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ना था उस टाइम पे तुम गाना सुन रहे थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ठीक है? तभी आप इसका साथ देंगे, तभी ये आपका साथ देगा, ठीक है? आपको लग रहा है कि आपने बस 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, याद रह जाएगा, नहीं याद रहता उसको, वो इरेज कर देता है। उसका मेमोरी स्टॉक जितना बढ़ता जाएगा वो पीछे का इरेज करता जाएगा। अभी आज का क्लास पढ़ा, उसके बाद 2 घंटा और क्लास कर लोगे तो ये वाला क्लास भूल जाओगे, ये याद रहता है। प्रैक्टिकल वाले क्यों याद रहते हैं बच्चे? क्योंकि आपने करके देखा है, वो प्रैक्टिस सेशन होता है। और मेन है कि जो चीज आप अपने हाथ से या अपने खुद के दिमाग से करते हैं ना, तो आपकी मसल मेमोरी उसको रिमेम्बर करती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कोडिंग लिखा है, ठीक है, आपको वो कोडिंग अगर आपने 3-4 बार लिख लिया तो चौथी बार याद हो जाएगा। वो मसल मेमोरी कहलाता है कि आपके मसल ने वो काम कर दिया तो आपको याद रह गया कि चौथी बार क्या किया था। तो आपकी मेमोरी जो है वो हर एक सेल में छुपी रहती है। सो यू नीड टू पुश दैट मेमोरी टू द सबकॉन्शियस, ठीक है? आपको उसे सबकॉन्शियस में डालना है ताकि याद रहे। और सबकॉन्शियस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार रीड करने से नहीं हो रहा है, दूसरी बार रीड करो, ठोकने से नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। यस, क्या वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लोग देते हैं उस टाइम हम लोग का पूरा ध्यान अपने आप उसका बॉडी लैंग्वेज पे जाता है। मुश्किल से 30 सेकंड या 60 सेकंड कंट्रोल कर पाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाए। वो वही होता है बच्चे, आप सबकॉन्शियस मतलब आप ये चीज ध्यान रहते हैं कि बेसिकली आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आप क्या देख रहे हो उनके चेहरे पे। ऑडियंस के चेहरे पे क्या दिख रहा है ना, इस पे आप डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस जैसे यहाँ पर पीछे जो लास्ट 2 बेंचेस हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी पूरी अपनी अलग दुनिया है, ठीक है, लेकिन क्या मुझे फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि अगर मैं उन पे ध्यान दूंगी कि बाकी क्लास क्या करेगी फिर, है ना? हाँ, वो क्योंकि हैबिट नहीं है, ठीक है, वो हैबिट में ही नहीं है आपका कि आप उस, क्योंकि आप ये ध्यान रखते हो ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ये बच्चा सुन रहा है, यहाँ देख रहे हो कि वो बच्चा सुन रहा है। आप एक बार ध्यान देना कि जब भी यहाँ कोई स्पीकर रहता है, आप लोग तो आओगे यहाँ पर, जब भी आप यहाँ पर आओगे, अगर वहां से कोई बच्चा हंस दिया, उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं कि वो मेरे पे हंस रहा है, क्या सोच के हंस रहा है, मैं बोलूंगा तो और हंसेंगे सब, ठीक है, कुछ गलत बोल देंगे तो पूरा क्लास मजाक उड़ाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। ये जो एक लाइन शुरू होता है खुद का सेल्फ डाउट करने का, ये जो शुरू होता है ये खत्म नहीं होता है फिर, और एट द एंड ऐसा होता है कि यू स्टार्ट फील योरसेल्फ वर्थलेस, कि हम कर ही नहीं सकते ये काम। वो यही होता है क्योंकि आप इस नेगेटिव जो थॉट्स ट्रेन है उसको रोक ही नहीं रहे, उसको रोको कहीं पर। स्टॉप दिस, कंट्रोल दिस, टेक अ ब्रीदर एंड से आई कैन डू, ठीक है? अपनी पॉजिटिविटी को खुद ही मोटिवेट करना होगा। आपको एक्सटर्नली कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है खुद से, आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी आप यहाँ पर आते हो, हर कोई हड़बड़ में रहता है कि बस बोल के चले जाना है, यहाँ पर उसका पैर नहीं टिकता है, लगता है जैसे तवा पे बैठा दिया उसको, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, कहीं ना कहीं उसका हाथ कॉलर पे जाएगा, बाल पे जाएगा, ऐसे ऐसे करने लगता है सब। These are all things because you cannot control yourself and the thoughts that is going on in your mind. आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं क्या बोले, कैसे बोले, क्या सोचेगा सब, इस थॉट को रोकिए, ठीक है? आपको कमांड देना होगा अपने ब्रेन को कि इसको नहीं आगे बढ़ने देना, इसको यहीं रोकना है, इससे आगे बढ़ा तो पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अंडरस्टूड? यू नीड टू स्टॉप देयर, ब्रीथ, टेक अ ब्रीदर। हमेशा सारे मैंने स्पीकर्स को देखा है, स्पीकर्स को करते हुए देखा है, जितने भी स्पीकर्स हैं, जब भी वो स्टेज पे आते हैं
टेक 2 seconds फॉर योरसेल्फ, 2 सेकंड सिर्फ अपने लिए। बच्चा की तरह सब टाई से कॉलर से खेलता है पीछे बैठकर। अब ब्रेक टाइम अब आज नहीं, बाहर से लंच लेके आएंगे। फैमिली 2 मिनट सोच के आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। बोलते थे कि सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें क्या था तुम सिंगल फैमिली और सत्या Yes, we start. अच्छा चलो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वो तो बोल सकते हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन इसके लिए भी सोचा। Good afternoon, everyone. I am Apurva Kumar Tiwari. I am from Navalpur, Patna, Bihar. I am pursuing BCA course in CMS College, Patna. I speak Hindi, English, and regional language of Bihar. एनी जो याद आ रहा है बोलो। 2 मिनट तक बोलना है। My hobby is helping to others. I am completed 10th from CBSE and intermediate from Bihar Board. कौन आएगा? यस, नेक्स्ट कौन आएगा? बुलाना पड़ेगा। यस, ओके, कहीं कोने में से निकालना पड़ेगा। You want to come?
Okay, your topic would be the day you met your best friend. समझ में आया है? Simple topic ज्यादा चलता है, जिसका टॉपिक चेंज इसलिए नहीं होता है, इसीलिए मैं शिफ्ट से स्टार्ट कर रही हूं। रिपोर्ट उठाया, Want to use mic? हाँ 2 मिनट और। Start with the introduction. Okay. My तो उसको इंट्रोड्यूस करोगे ना कि नाम रखना है उसको। नहीं रखना रखना है। चाहते हो तो दैट इज अप टू यू, उसकी प्राइवेसी है। तुम्हारा कैसे है, तुम्हें मत बताना तो बताओ नहीं बताना। क्या The day he met his best friend. And the पहले दिन जब ये अपने best friend से मैम तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो दोस्त हो तब वो बात नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। वो ज्यादा पर्सनल होता है। Yes, be quiet. हाथ कैसे रखना ओपन जैसे नॉर्मली बात करते हो उससे Good afternoon. I am here to share my first day with my best friend. His name is Atul. When I was in class 10th, we met in the class. He sits besides me, and at the very first day, we don't talk. Like after 1 or 2 periods, we talk to each other. Then we share our past experiences, and also shared about our background, like family, and I got to know that he is as I love to sing, so I get to know that he also sings very well, and we started talking about that also, and after that we started sharing good bonding. We understand each other, like after that day
anything, any problem, I share with him, he shares with me, I provide him solution, he provides me, and we are cooperating each other in every aspect whichever possible. And thanks. Yes. First of all, थोड़े से grammatical mistakes regarding the tenses उसको clear up कर दीजिए. And yes, it does happens. आप लोग को believe नहीं होगा. अभी यहाँ तो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं. बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो लिटरली अपना नाम भूल जाते हैं यहाँ पर आकर. ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज वेरी नॉर्मल. उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है. वंस यू गेट यूज्ड टू इट सब कुछ ठीक हो जाता है. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट कौन आएगा? यस, लड़कियां बहुत बोर हो रही हैं भाई. Who will come? चलो आपका टॉपिक दे दिया मैंने. Speak about your idol. आप किसे आइडल मानते हैं? Good morning, everyone. Today I am here to tell about you who is my idol. So my idol is Sandeep Maheshwari. She is a very good person. Actually, sorry, he is a very good person. Actually, when I was in a standard 7, I saw him. I saw him a video, which was really motivated me. I thought I was that day I was really upset with some of the school's problems, with some of the school problems. So suddenly I was searching some of the motivating thing on my YouTube channel. So I started I started seeing his video. I see his video and it was really motivating me. And actually, which topic I want to know to motivating me, and exactly that topic get me. So from that day, he was always helping me for getting positive thing and for doing lots of motivating thing. He was really inspired, and if many of the positive quality I have come, then only because of him, because he's the way of explaining and explaining and giving. It's really a simple, which make me really motivated. Not only me, but millions of people were get inspired by him. So I really think that he was a great ideal for everyone. I think so. I think he was not ideal for me. He was more of them, because he really is fine. I don't have the words even explaining about him. Yeah. So thank you. Yeah. Yes. What is the name, bachche? Sorry. Preeti Kumari. Preeti. Yes. Preeti. The only thing that is lacking from your speech is the formation of sentences. Okay. आपका formation जो है वो सही नहीं हो रहा है sentences का. उस पे ध्यान दीजिए. You can work out the things. You have the body language. You have the confidence to come up here. You have the speaking ability. Your voice is not too low. The only thing you have to work a little bit. Practice से तो और improve हो जाएगा. नहीं वो हो जाएगा. वो practice हो जाएगा.
सेंटेंस फॉर्मेशन पे थोड़ा ध्यान देना बस, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स एंड दिस सेशन हियर देन। क्या और कोई आने वाला है? नहीं, इफ यू वांट टू कम डोंट वेट फॉर मी टू ड्रैग यू आउट ऑफ योर सीट। अपने से खुद से हिम्मत जुटाइए और एक बार कह दीजिए आना है। Yes, anybody else who would like to come? मतलब इतना मोटिवेशन दोस्त दे रहा है फिर भी उठने का हिम्मत नहीं मिल रहा है तुम्हें। ऑल राइट, ये थोड़ा मोटिवेट नेक्स्ट क्लास तक के लिए रखिएगा उन लोगों को, ठीक है?